The centre has announced that 25th June will be marked as the Samvidhan Hatya Divas against the emergency that was imposed by then Prime Minister Indira Gandhi. Soon after that, war of words began between the BJP and Congress. Prime Minister Narendra Modi called this day as a reminder to all the sufferings that people went through during the emergency. Home Minister Amit Shah referred PM Indira Gandhi as dictator who strangled the soul of Indian democracy. Meanwhile, Congress President Mallikarjun Kharge slammed BJP and said that NDA government has been celebrating Constitution Murder Day every day for the last 10 years. Let's in fact listen in to some political reactions coming in. This is a very important decision taken by the government. The reason is very simple, that in the annals of history, the darkest day and era has been the imposition of emergency by late Indira Gandhi ji. And the current generation is aware of the fact, and we have learnt our lessons. The sad part is, the agonizing part is, that the Congress party and its leaders like Rahul Gandhi, who hold and display the Constitution of India, have never apologized to the country. After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party. We all know that the BJP is rattled and they are unable to face the Constitution story. We all know that when we named the India Alliance as India, they try to bring Bharat into it. Now when Jai Samvidhan is an issue, they wanted to divert it from this kind of things. It's a diversionary tactics. The RSS has trained BJP friends for it. And we all know that the real issues, they want to divert the people of India from the real issues of NEET, the examination leaks, the Agniveer's failure and the price rise. This is a diversionary tactics. People won't accept this kind of politics. People will reject this kind of diversionary tactics. संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त। और देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वो अब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बार बार। अभी इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी उस पर किए, पर कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। कारण ये है कि जो सबसे ख़राब स्थिति में देश खड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कल एक वीडियो मैंने देखा गुजरात का, जिस गुजरात के मॉडल पे इन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि भाई गुजरात मॉडल है हमारा, सबसे अच्छा है, पूरे हम देश को गुजरात मॉडल में बना देंगे। वो गुजरात मॉडल भरूच में एक छोटे से होटल में इंटरव्यू, सैकड़ों हजारों बच्चे उस पर गिर रहे हैं। ये स्थिति सामने दिख रही है। इससे कितनी बार हो चुका, मतलब एक वीडियो आ गया आज, पर कितनी चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। तो ये घबराहट में आज इन्होंने, मैं समझता हूँ कि आज 12 तारीख है, 12 जुलाई को ये 25 जून का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे,
उन्होंने उस दिन इमरजेंसी लागू किया था पूरे देश के ऊपर, और बहुत लोगों के ऊपर, हज़ारों लोगों के ऊपर यातनाएं उस समय करी गई। बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, जेल के अंदर मीसा जैसे एक्ट लगाए गए, जेल के अंदर उनके ऊपर अत्याचार हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण उस समय तैयार किया गया था कि जिसमें डेमोक्रेसी की मर्डर हो गई थी। और आज उनके ही जो डिसेंडेंट हैं वो संविधान ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई फिल्म स्टार जाता है हाथ लहराते हुए, ऐसे संविधान को लहराते हुए सब जा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, जबकि संविधान की हत्या उनके द्वारा हुई है और बार बार हुई है। एक बार नहीं, बार बार हुई है। यहाँ तक के संविधान के जो मूल आत्मा है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। जिस दिन देश की संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद का, हमारी पहलवान बेटियों को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पे घसीट घसीट के मारा गया, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? अरुणाचल की चुनी हुई सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाई गई, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? उत्तराखंड में सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, कर्नाटक में सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद के सरकार गिराई गई, गोवा में खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई। आप मुझे बताइए वो संविधान का हत्या दिवस क्यों नहीं है? Aditya, lots and lots of reactions coming in as far as the Samvidhan Hatya Divas is concerned. What exactly is the opposition saying, and give our viewers a better understanding of the political war of words that's now started? जी देखिए, संविधान हत्या दिवस जो है पूरे भारत में मनाने की बात कही गई है, और 1975 में जब लगाया गया था ये इमरजेंसी, उस वक्त से लगातार जो है उस वक्त आरएसएस और जो राइट विंग के जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो जो है उसका विरोध कर रही थी। और अभी जिस वक्त 2024 के चुनाव में देखेंगे तो पूरे 2024 का जो चुनाव था वो पूरा जो डिपेंड था वो था संविधान की हत्या के ऊपर, क्योंकि बीजेपी और एनडीए के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी बीजेपी के ऊपर में कि बीजेपी जब आएगी सत्ता में तो संविधान खत्म कर देगी। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था तो सबसे पहले जाकर के संविधान को उन्होंने प्रणाम किया था। इसका साफ इशारा यह था कि हम किसी भी संविधान के खिलाफ नहीं, हम संविधान के साथ चलने वाले हैं। उसके बाद जिस तरीके से आपने शपथ ग्रहण के समय देखा, या जब एमपी जो शपथ ग्रहण कर ले रहे थे उस वक्त हमने देखा तस्वीरों में जिस तरीके से जो कांग्रेस है और जो विपक्षी दल हैं वो संविधान की प्रति लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये साफ दिखाने की कोशिश थी। और पूरा का पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जितने भी संसद सत्र जितने भी चले या जितने देर जो एमपी जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया उस वक्त संविधान का मामला खूब चला था। जैसे ही एमपी जो अंदर घुसे संसद भवन को, उन्होंने महात्मा गांधी के स्टेचू पे प्रणाम किया था, वहां पे वो मिले थे और आपस में डिस्कशन किया था किस तरह का विरोध करना है। तो पूरा लोकसभा चुनाव 2024 का और अभी तक जो है संविधान के आधार पर चलता रहा है कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है संविधान के विरोध में। इसका जो जवाब है, क्योंकि कांग्रेस के माथे पे ये इमरजेंसी का दाग इस तरीके का है कि किसी भी तरीके से वो हटा नहीं सकती। ये एक ऐसा पॉइंट जैसे कि एक जो दुखती हुई नस जिस तरीके कहते हैं वो है। तो इस तरीके से आप पूरे मामले को देखेंगे तो बीजेपी जो है कांग्रेस को बार बार ये याद दिला रही है कि हमने हत्या नहीं किया, संविधान का आपने हत्या की है। साथ ही साथ जो विपक्षी दल हैं उनके साथ में जो गठबंधन में है उनको भी ये हम हमेशा दिखाने की कोशिश की। जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो अनुसांगिक संगठन है उनके भी उनके साथ में जो महागठबंधन में आने वाले लोग हैं या इंडी ब्लॉक के जो अन्य संगठन हैं उन्होंने भी इस बात का विरोध किया है। तो उन सबको भी ये दिखाने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ में आप हैं या जिस संविधान हत्या करने वाली पार्टी के साथ में है आप भी उनके पीड़ित रहे हैं। जैसे क्योंकि संविधान जिस वक्त इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें बीजेपी के जनसंघ के लोग ही नहीं, जो अन्य संगठन थे, क्योंकि उस वक्त सारी पार्टियां जिस तरह की थी नहीं एक ही थी। जिसमें अगर आरजेडी की हम बात करें तो आरजेडी की बेटी जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनकी बेटी का नाम मीसा भारती, वो मीसा कानून के ऊपर लगाया गया था। वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इशारा है उनकी तरफ की आप जिस पार्टी के साथ में आज खड़े हैं वो जो है आपके साथ में अन्याय उन्होंने किया था। तो ये पूरा का पूरा मामला देखें तो बीजेपी और कांग्रेस या एनडीए गठबंधन जो और एनडीए ये दोनों आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरीके से इशारे हैं बीजेपी जिस तरीके से इशारे कर रही है, जिस तरीके से एनडीए इशारे कर रही है उससे कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। आप कांग्रेस किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकती, तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर होता दिखाई दे रहा है। जो उसके बदले में ये जरूर बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी जो है या नरेंद्र मोदी जो है हेडलाइन बनाना चाह रहे हैं, खबर कैच करवाना चाह रहे हैं, इस वजह से राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में यह है कि कांग्रेस इस बात पर हमेशा बैकफुट पाई जाती है जब भी संविधान दिवस की बात होती है। और बीजेपी आज से नहीं सालों से जो है जिस दिन इमरजेंसी लगाई गई
थी उस दिन जो है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही, जितने राइट विंग्स हैं वो कार्यक्रम आयोजित करती रही, और हर बार जो है उनको याद दिलाया जाता है संविधान के लिए खुदा हम नहीं है, आप हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.